अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश के मांडला जिले में एक खातून ने ऑटो रिक्शा में 4 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन तमाम नवजात बच्चे जानबर ना हो सके। घर वालों ने एम्बुलेंस ना मिलने को इस हादसे की वजह करार दिया। डिस्ट्रिक्ट CMHO डॉक्टर DJ मोहंती के मुताबिक रजनी सिंगाराम को 7वें महीने की हमल के दौरान लेबर पेन के बाद पहले घूथास के सरकारी हेल्थ सेंटर लाया गया था। उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें ऑटो रिक्शा के जरिए बिचिया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजा गया, जहां रास्ते में डिलीवरी हो गई। महीने का गर्भवती था, जो बच्ची को घरवाली को ऑटो से लेके आए और एम्बुलेंस ना मिलने के कारण ऑटो से लेके आना पड़ा। आधे रास्ते में डिलीवरी हो गया तो दिशा अस्पताल में पहुंचाए हैं। घर से 8 बजे गए थे हम मनेगांव से गुटास आए, गुटास से विच्छे के लिए रेफर करे। आधे रास्ते में जच्ची हो गए। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। उसमें बेटे कितने थे, बेटी कितनी? बेटे 3 थे और बेटी 1। तो आपको कितने टाइम पता चला? जच्ची होने के बाद पता चला। यहाँ पर स्टाफ की तरफ से पूरी मदद की आपकी? नहीं, आधे बीच में जच्ची हो गई थी। मैं जो महिला को अपने निजी वाहन से हॉस्पिटल ला रहे थे, रास्ते में उनकी डिलीवरी हो गई थी और हमारे हॉस्पिटल में पहुंचे तो उनको प्राथमिक उपचार दिया गया है उनको, और देखभाल भी किया जा रहा है और अभी स्वस्थ है महिला। कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ा और कोडागु इलाकों में मुसलसल तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई। सूरत हाल को देखते हुए कोडागु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बुध के दिन तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान कर दिया। इदारे मौसम ने भी लोगों को एहतियात बरतने और ज़रूरत के बगैर घरों से ना निकलने की हिदायत दी है। We have deficient rainfall. In the June month, we have got 33% less rainfall than the expected rainfall. In the June month, first week, we are getting good rainfall in the last week, but it is not sufficient to cover the loss of the last month, previous month. So, because of the El Nino part is there, because of the El Nino effect, this year we are expecting less rainfall activity than the previous year. Last year we got excess rainfall than the normal, and our normal rainfall is almost 375 centimeters in a year. Last year we got more than 5,345 millimeters. So that was an excess rainfall year. This year our IMD also predicted for a deficit rainfall, and as predicted, our rainfall activity is less, and number of rainy days has decreased again. But still there is a good news is that Mangalore, this Dakshina Kannada area, we may get around 60 to 70% of the annual rainfall, and that is more than 250 centimeters. So 250 centimeters is not a small rainfall, but what we can expect this year, we may expect less landslide and flood situations, and we may get more sunny days. Number of rainfall days will be less. So this will be enhancing the economical activity, and we have to conserve the water wherever we are getting in the dams and the rivers, and this recharging groundwater recharging facilities, if it is available, we have to keep it in good condition and keep the water resources safely. And this El Nino impact is slowly increasing, and it is not reached its peak. So there is a peak impact will be there in the coming months also. So August and September, we are expecting less rainfall than the normal rainfall. So the annual rainfall, it may impact. So what we have to do, we have to conserve the available water through water conservation methods, for even like our household recharging method, this rooftop water collection, and any this drainage system is there, and that should be connected to some water collecting area.
So this will improve the water conservation, and the available water should not be polluted. That water, if we keep for the next year also, this El Nino effect will continue, because El Nino period is 1 to 1.5 years. So it is only उत्तर प्रदेश के इटावा में स्लीपर बस की ट्रक से टक्कर के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए और 28 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर और कंडक्टर मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि जख्मी मुसाफिरों को इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जानकारी सुबह 4 बजे के आसपास जो है खड़ी हुई डबल डेकर स्लीपर बस थी, उसमें पीछे से जो है किसी ट्रक ने टक्कर मार दी है। तो लगभग 40-45 सवारियां थी। तो तत्काल ही सभी लोग मरीजों को यहाँ लाया गया था, और उनमें से 2 मरीज तो मृत अवस्था में लाए गए थे। बाकी जो मरीज घायल थे उन सबका उपचार किया है। जिनको साधारण छोटी मोटी चोटें थी उनको तो उपचार दे के छुट्टी दे दी गई है। बाकी मरीजों का उपचार इलाज चल रहा है। जब बस लड़ी है तो बस पीछे से ट्रक में ठुकी थी। अब यही देखे हैं, अब जैसे ट्रक वाला ब्रेक मारा वही होगा, ट्रक वाला ब्रेक मारा होगा या ट्रक ओवरटेक करके सामने आ गया हो या बस वाला सो गया हो। ये 3 कंडीशन हो सकते हैं। उसमें से जो हुआ आगे लड़ गई। और ये मैं बनारस से दिल्ली जा रहा था, उधर मतलब गाजीपुर का रहने वाला हूँ। 7 बजे वहां से बस चली थी बनारस से। बनारस से आ रहे थे, काशी से ना दर्शन कर गए, तो हमें बस मिली यहाँ कालका तक, शिमला सॉरी दिल्ली तक की। अब वहां पहुंचे और रास्ते में हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर ने हिट किया उसको, बड़े ट्रॉले को। अब उसके बाद आप तो मेरे ख्याल वो एक्सपायर हो गया। पूरी हमारी फैमिली को, प्रेग्नेंट लेडी थी हमारे साथ, चलो वो तो सुरक्षित है, अभी डॉक्टर ने चेक किया, ठीक है। बाकी बेटे के टांग में फ्रैक्चर है, माता जी के हो गया फ्रैक्चर कमर में, और उनके एक बेटा और है उसके भी फ्रैक्चर आया है, ठीक है। मेरी भी गर्दन में बड़ा दर्द है, ठीक है। और ये मसल पुल हो चुके हैं। ये मेरे ख्याल 4:15 के बीच की है। सारी घायल है सर, उसमें 42-45 लोग थे, सब चोटें सबको लगी है। उत्तर प्रदेश की चंदौली में एक लड़की की लाश नहर से बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में सुसाइड के पहलू से जांच की जा रही। कहा जा रहा है कि रील्स बनाने पर मां की डांट के बाद लड़की ने ये कदम उठाया हो सकता है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है और मामले की मज़ीद तहकीकात कर रही। सर एक 100 मिला है, क्या मामला है? आज सुबह सूचना मिली कि मोदना नहर में एक युवती की लाश जो है फंसी हुई है। सूचना पे हम लोग आए, यहाँ पे जानकारी किया गया तो पता चला कि ये लड़की रहने वाली बबरी थाना क्षेत्र की है, और इसका नाम पता चला खुशबू, लेवा रोड थाना बबरी की है रहने वाली, और अपने ननिहाल में गई थी। ननिहाल कौआ घाट थाना क्षेत्र अदलहाट है, वहाँ पे गई हुई थी। वहाँ पे रील बनाने की बात को लेकर इसकी मां ने बहुत तो डांटा उठा था, उसी से चुप होकर ये नहर में कूद गई थी। जिसके संबंध में थाना अदलहाट पे के संबंध में तलाश भी की गई थी, और वहाँ पे गुमशुदगी इसकी अंकित की है। शव को निकलवा के पंचायतनामा के लिए करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो ने योग्यकर्ता में ब्रह्मबानान टेम्पल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। दोनों रहनुमाओं ने इस प्रोजेक्ट को हिंदुस्तान और इंडोनेशिया के तहजीबी और सकाफती ताल्लुकात को मजबूत करने की एक अहम पेशरफ्त करार दिया। केरला के चीफ मिनिस्टर सतीसन ने कहा कि वायनाड लैंडस्लाइड के बाद केरला हुकूमत टेक्निकल और लीगल इंक्वायरी कराएगी। उन्होंने ऐलान किया कि डिजास्टर की वजह का जायजा मुकम्मल होने तक टनल कंस्ट्रक्शन का काम फिलहाल रोक दिया गया है। ഒരു ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രാഥമികമായി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൂടി പരിശോധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ തുരങ്ക നിർമ്മാണത്തിനായി പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി കൊടുത്തപ്പോൾ കൊടുത്ത കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ കരാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നവർ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. അപ്പോൾ അപകട സാധ്യതകൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പണി തുടരാൻ പോകുന്നത്. അതുവരെ ആ പണി ഇപ്പം നടക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ അതിനുശേഷമായിരിക്കും ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വിശദമായ പഠനം, രണ്ട് അപകടമുണ്ടായ കാര്യവും അതേ അവസരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി കൊടുത്തപ്പോൾ കൊടുത്ത കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം, ഇത് രണ്ടാണ്, രണ്ട് അന്വേഷണമാണ്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തും. അതുപോലെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ്, ഞെട്ടിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച ക്രമക്കേടുകളെ കുറിച്ച് അതിന്റെ പരാതിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ലഭ്യമായതനുസരിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഈ ക്രമക്കേടുകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഴിഞ്ഞം ആ പോർട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ 49% MSC എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക്, മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള മുൻകൂർ एक्टर अनुपम खेर ने अपनी फिल्म की शूटिंग से पहले अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने बताया कि उनकी फिल्म श्री राम भूमि उन लोगों पर मबनी है जिन्होंने मंदिर की तामीर में अहम किरदार अदा किया। अनुपम खेर ने कहा कि उनके दादा भी यहाँ आया करते थे और मंदिर आकर वो जज्बाती हो गए। उन्होंने डोनेशन में गलत इस्तेमाल को गलत करार दिया, लेकिन कहा कि इसका असर सनातन या भगवान राम पर नहीं पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। नए फिल्म की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। फिल्म का नाम है श्री राम भूमि। मंदिर को की स्थापना करने में कैसे कितने कष्टों का सामना करना पड़ा, उस पर आधारित ये फिल्म है। कामाख्या जी इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जी स्टूडियो इसको प्रोड्यूस कर रही है। कामाख्या जी इसको डायरेक्शन दे रहे हैं और हनुमानगढ़ी भी आया, आशीर्वाद लेने आता रहता हूँ। अयोध्या मेरे दादाजी बहुत आते थे, फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठान के दिन भी आया था, आज भी आया। बहुत लोगों की भीड़, लोगों की आस्था देखकर आंख में अश्रु भी आते हैं और श्रद्धा का भाव भी आता है। राम मंदिर में दान चोरी के मामले को कैसे देख रहे हैं अनुपम जी? क्या है कि घर में चोरी होती है तो घर पर लांछन नहीं लगाते। जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मगर सनातन जो है और राम जी जो हैं वो द्वापर युग से हैं, युगों से हैं और उनके इसको हमें ही एक ऐसी घटना लेनी चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया है उनको ज़रूर पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन इसका सनातन पर या रामचंद्र जी पर कोई नहीं आना। इम्फाल में मणिपुर के रहनुमाओं ने उखरुल ज़िले में नामालूम हमलावरों के अम्बुश में शहीद होने वाले 2 आसाम राइफल्स जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। रहनुमाओं ने शहीद जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हुए उनके घर वालों से ताज़ियत का इजहार किया।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के थातरी इलाके में फ्लैश फ्लड के बाद बहाली का काम लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। टीम्स मुतासरा इलाकों में सड़कों और बुनियादी सहूलियात को बहाल करने के लिए मुसलसल काम करते हुए नजर आए। अमरनाथ यात्रियों की वापसी का सफर शुरू हो चुका है। बाबा बर्फानी के दर्शन और इबादत मुकम्मल करने के बाद अमरनाथ यात्रियों ने जम्मू के लिए अपना वापसी का सफर शुरू कर दिया। यात्री रूहानी तजुर्बे के बाद खैरियत के साथ घरों की तरफ रवाना हो रहे। हेडिंग टू जम्मू, heading towards केरला मिनिस्टर अनिल कुमार ने कहा कि वायनाड लैंडस्लाइड के बाद लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। उन्होंने बताया कि खराब मौसम रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में बड़ी चैलेंज बना हुआ है, लेकिन टीम्स मुश्किल हालात के बावजूद अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। Actually, rescue operation is going on, or all the troops, Fire Force and police and DRF, all are there. They are doing well, but weather is not favor us. That is the main challenge. But if so, it will take time. That's another thing. But in this scenario, we can say as early as we have to find out these people who are missing. We are focusing only for that. We can do that within before evening. We are expecting we can find out them before evening. शिवसेना यूबीटी एमपी संजय रावत ने थाने हॉस्पिटल में शिंदे सेना के कॉरपोरेटर की तरफ से डॉक्टर्स पर हमले के बाद महाराष्ट्र हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत में रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है और सीएम देवेंद्र फडणवीस कुछ नहीं कर रहे। संजय रावत ने कहा कि कोविड के दौरान डॉक्टर्स ने सबकी जान बचाई थी, लेकिन अब उन्हीं लाइफ सेवर्स पर गुंडे हमला कर रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि इस कॉरपोरेटर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जाए और कहा कि मिंधे सेना अंडरवर्ल्ड के सिवा कुछ नहीं। आताच मी या विषयावर आपण पाहिलं असेल, एक्स अकाउंटला मी आताच एक माझं मत व्यक्त केलंय। मी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुचवलंय की मंत्रालयाच्या 6व्या माळ्यावर गृहमंत्री पदाची पूजा घाला। मंत्रालयाच्या 6व्या माळ्यावर सत्यनारायणाचं पाठ मांडून त्याच्यामध्ये तुमच्या गृहमंत्री पदाची पूजा घाला। ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रात कायद्याचं राज्य कोलमडलेलं आहे आणि तुम्ही फक्त टिवल्या वावल्या करताय, विरोधकांवर टीका करताय, तुमचे लोक फिरी फिरी हसतायत, तुमच्याही चेहऱ्यावरती स्मितहास्य असतं। ज्या पांढऱ्या कपड्यातल्या देवदूतांनी तुमचे प्राण वाचवले कोरोना काळामध्ये, देवेंद्रजी या राज्यातल्या जनतेचे प्राण वाचवले, त्यांना आपण शुभ्र कपड्यातले देवदूत अशी उपमा दिली। त्यांच्यावर कल्याण डोंबिवलीच्या गुंड टोळीचे म्होरके
जे एका राजकीय पक्षाचे सदस्य आहेत, नगरसेवक आहेत, ते महिलांवरती हात टाकतात. महिला आरक्षण करायला निघालाय ना तुम्ही, टीका करताय ना, डॉक्टरांवरती हल्ला करतात आणि बिनधास्तपणे निघून जातात. मी त्यांना सुचवलंय गृहमंत्री पदाची पूजा घाला, नाहीतर ज्यांनी त्या महिला डॉक्टरांवर आणि नर्सेसवर हात टाकलाय त्यांच्या हातामध्ये बेड्या घालून त्यांची रस्त्यावरून झेंड काढा पुलिस स्टेशनला. इतरांच्या टीएमसी एमपी कीर्ति आजाद ने बरोईपुर रेप मर्डर केस के की अक्यूज्ड के पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी की सियासत अब बंगाल तक आ गई है. उन्होंने दावा किया कि प्रभास मंडल बीजेपी वर्कर था और वो पुलिस की पिस्तौल छीनने की हिम्मत नहीं कर सकता था. कीर्ति आजाद ने इल्ज़ाम लगाया कि फेक एनकाउंटर को जस्टिफाई करने के लिए झूठी कहानियां बेची जा रही. प्रभास मंडल बीजेपी का एक बहुत बड़ा सक्रिय कार्यकर्ता है. वह इनकी कस्टडी में ही था और जब पुलिस की कस्टडी में था तो उसने पुलिस का पिस्तौल निकालने का प्रयास कैसे कर लिया? वो उनके साथ में मन मर्जी से साथ में आया था, वो निकाल के भागने का प्रयास करेगा? कभी कोई सोच सकता है ऐसी झूठी मनगढ़ंत बातें जैसे यूपी में होती है वैसे बंगाल में होनी शुरू हो गई? जिस प्रकार से यूपी के अंदर इस तरीके से मनगढ़ंत एनकाउंटर्स किए जाते हैं, इन्होंने भी सच्चाई को छुपाने के लिए बीजेपी वालों ने पुलिस से कह के उसका एनकाउंटर करवा दिया. एक राजा है, दूसरा अभियुक्त इस बलात्कार में, उसके घर में पुलिस बैठी हुई है, चाय पी रही है, बिस्तर पर बैठी हुई है, उसको कुछ नहीं कह रही, वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है. तो ये सब केवल सब छुपाया जा रहा है. यूपी की पॉलिटिक्स बंगाल में आ गई है. बंगाल जंगल राज से बदतर हो चुका है. बीजेपी लीडर केया घोष ने बरोईपुर रेप मर्डर केस पर बयान देते हुए कहा कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की जबकि अक्यूज्ड क्राइम रिकंस्ट्रक्शन के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था. उन्होंने टीएमसी पर अफवाहें फैलाने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि बीजेपी हुकूमत रेपिस्ट को बिल्कुल नहीं बख्शेगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा. साथ ही केस का चौथा मुलजिम कबीर मुल्ला भी गिरफ्तार कर लिया गया. जो खबर हमें मिली है, जो एक आरोपी वो भागने की कोशिश उन्होंने किया था जब रिकंस्ट्रक्शन होना के लिए सूरजपुर वो अंचल में पुलिस लेके गई थी. तो पुलिस के फायर आर्म से वो पुलिस को घायल करने की जब कोशिश किया तो पुलिस अपने बचाव में फायरिंग उन्होंने किया फिर पुलिस के तरफ से. और उसके बाद जब घायल हालत में उनको अस्पताल लेके गया है तो उनको मृतक घोषणा की गई है. तो पुलिस अपने बचाव में फायरिंग किया है और भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दोषी है, जो भी आरोपी है बरोईपुर कांड में, हर किसी को सख्त से सख्त सजा देने की हमारी मांग थी. और सरकार ने ऑलरेडी तीनों को उस अरेस्ट किया है और चौथा को अरेस्ट किया है, कबीर मुल्ला, ये बरोईपुर घटना में. और जो कोई भी वहाँ पर इंद्रजीत, जो मासूम इंद्रजीत जिसने उसको मॉब लिंचिंग करके पीट कर मार दिया गया है, उसको भी जो दोषी है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा. और जो वहाँ पर अनरेस्ट किए थे, जो रेलवे ट्रैक्स को उखाड़ फेंकने का साजिश रचा था, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा. उस घटना में ऑलरेडी 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. तो जो कानून है, कानून अपना काम कर रही है, पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रही है. लेकिन लोगों को उकसाने का या झूठ खबर फैलाने का काम जो वामपंथी या तृणमूल कर रही है, ये बहुत शर्मनाक है. इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं. अल्लाह हाफिज.